Hi guys, welcome to our channel. Today we have something different and something special for you. We will be inviting a friend of ours who has recently bagged All India Rank 38 in GATE 2021 held in the month of February. So I hope you guys are excited for this video as we will get to know a lot of tips and tricks as to how to prepare for GATE efficiently and crack it with flying colors. Before we move on, don't forget to subscribe us and support us. It would mean a lot to us. Hello guys, we have with us Siddhant, the one and only All India Rank 38, whom we are very excited to interact with. Firstly, congratulations to you Siddhant for achieving this feat. We are really happy for you and glad your hard work paid off. Thank you so much. So we already know that you and your family, friends must be feeling really ecstatic to hear this news. But still, we want to know what was your reaction like when the results were out. How did your parents react, and were you like expecting to be in the top 100? First of all, when I came out of the exam hall after giving my paper, I thought it went really bad. I wasn't even expecting to get like under 500. So I was depressed for 10 or 5 or 10 days. Then when the final answer key came out and I came to know that my marks are around 70 and 70 plus out of 100. So at that point of time, I knew that now I would definitely get under 300. Then when I checked it on predictors, they were saying under 100. So I didn't believe at first. Like I thought they might not be accurate right now as they don't have enough data set. But still, I was hopeful that yeah, I might get under 100. But then when the finally results came out and I saw 38. So first I couldn't believe. I think it must be 380 or something. So I checked, and then when I told my parents, even they couldn't believe that I got. So I haven't told them that I'm getting under 100. So they were thinking like, yes, he will get under 300 or something. But even when they came to know, even they couldn't believe. And yes, they were very happy. And when I was checking my result, one of my friends was also at my place. So yes, we all celebrated. Really great to hear. No, seriously. And what I wanted to ask was, this was your very first attempt, right? Yeah. Okay. अपने साथ का ही हो? And Oh, CS final में? year. Computer CS science में. final year. Cool. So Siddhant, how it all started? Like you thought कि I should give GATE instead of placements and other things and go for higher studies. So for that, we would have to go 4 years back when I gave my JEE, and you might have guessed how it went. So I ended up in a tier 3 college, and no one was expecting that. Everybody thought that I would go into IITs and that, but so stuff happened. And then when I finally came to my college, and I was very depressed when it was a tier-less college. It was a local government college in Jabalpur. So at first I was really sad, and then I came to know that there wouldn't be such great placements here, or even since it's a government college, you can't even score a good CGPA. So if you want to do GRE or CAT, you need a good CGPA for your profile. So when I was in my third year, I thought a lot about this, what I want to do, and then one of my friends suggested that I think GATE is our best option because we don't even need a CGPA, and I was even interested in my field. From 10th standard only, I wanted to do something in computer science only, so I was interested in the subjects. So one of my friends told me about this teacher, Ravindra Babu Rahula, sir, that he's very good and you should check out his videos. And at that point of time, I hadn't even made my mind that I want to write GATE. So then I saw his first video, which was about asymptotic notations in algorithms. And I found his way of teaching very intuitive and very interesting. And it wasn't even like a lecture. I thought I was watching a web series. And so I binge watched the entire playlist and I had a lot of fun. So I said that, yes, this is the thing I want to do now. I mean, it wouldn't even feel like a preparation if I'm having fun doing it. So that's how it started, and I started watching his videos in 2019. So a huge credit even goes to my friend who suggested him, and obviously my teacher Ravindra sir, who is an exceptional teacher.
And that's how it started my journey. That's how. And then when I gave test series, and even then I was getting marks, so I thought I became more confident that yes, that I can do this. I can get a good rank. So basically, the preparation started around third year of your Third, college. fifth semester. When I just came into fifth semester, I started watching, because at that point of time I had realized the state of placement here isn't good. Only service based companies are going to come, which will offer 3.45 to 7 LPA, and even the work culture wouldn't be that great there. So I thought I should first get in a position where at least I can get opportunities. First, I should go to a college where I would get opportunities to appear for better placements. So that's why I started preparing. And initially, you started watching the online the videos of that teacher, right? And Yeah. what about in the later stages? Did you join any institute, or did you have any formal the training sort of a thing for GATE? Like So the how did funny thing was, in the March, as we all know, due to the lockdown, there weren't any coaching. Only medium was online. So even those who were going for offline coachings and all, even they had to do online only. So the good thing was that due to lockdown, I didn't need to go to my college, so I could dedicate all my time for my GATE preparation, and that thing worked in my favor. अच्छा, हाँ, मेरे को बता, तूने वो रविंद्र सर का वो पूरा पैकेज ले लिया था या तू सिर्फ उनके ऑनलाइन वीडियोस देख के ही सब काम चला रहा था? ऑनलाइन वीडियोस ही उनके देखे थे, ओनली वॉच ऑनलाइन वीडियोस। और उसके अलावा गेट ओवरफ्लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनकी प्रीवियस ईयर्स की पीडीएफ होती है गेट ओवरफ्लो पे, और उस पीडीएफ में हर क्वेश्चन के आगे एक यूआरएल दिया रहता है जिसपे उसका पैनल डिस्कशन रहता है, जिसमें सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इसको करने का ये एक मेथड हो सकता है, ये एक मेथड हो सकता है। तो उससे भी बहुत हेल्प मिली थी। मतलब उस पे प्रीवियस ईयर्स तो आप करते ही हो, बट प्रीवियस ईयर्स में फिर डिस्कशन पढ़ने से ये हुआ कि मुझे बहुत सारी और ट्रिक्स पता चली, बहुत सारे और नए मेथड्स पता चले, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो रवि सर ने भी नहीं पढ़ाए थे वो भी वहाँ पे मेरे को मिल गए। ऐसे क्वेश्चन भी मिले जो मतलब मैंने सोचा कि यार ये तो है ही नहीं, उनने पढ़ाया ही नहीं है, तो वो भी डिस्कशन से पता चला। ये रहता है कि मोटिवेटेड कैसे रहे प्रिपरेशन के टाइम, कुछ अप्स एंड oh, डाउन्स हुए क्या, right. ये रहता है। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, नोट्स वोट्स का क्या किया, ऐसा हाँ, रहता नोट्स है। तो अच्छा, मेरे को वो मैंने पूछने का बहुत मन कर रहा है सिद्धार्थ कि क्या? रोज रात को तो मेरे साथ गेम ही खेलता था। फिर भी हाँ तो कर सकते हो तुम, करना है तो कर दे। So because हाँ यार obviously वो, you can't be studying all day, right? You need some sort of हाँ, तो तू वो नहीं बोल द सकता है कि फनी, एट द एंड अरे ऑफ द डे आई यूज्ड टू प्ले। अरे फनी थिंग ये है कि मैं काउंटर स्ट्राइक ज्यादा खेला हूँ। मैं रोज हाँ, 3 घंटे वही मैं पढ़ता कह था रहा और हूँ, रात में सच्ची का ये चार ज्यादा खेला, ज्यादा है पढ़ाई से ज्यादा, मैं वही कह रहा था। 4 घंटे काउंटर स्ट्राइक खेलता था, 3 घंटे और पढ़ता था। 10:30 से 2 बजे तक तो काउंटर स्ट्राइक ही खेलते थे, उसमें क्या पढ़ाई। हाँ, वही ना, सुबह दिन में 3 घंटा पढ़ के फिर रात को 4 घंटे गेम ही खेलता था। किस्मत भी, मतलब लक भी बहुत प्ले कर रहा है। मतलब यार ऐसा हुआ है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब पूरा ही इतनी मेहनत की थी कि आनी ही थी। मैंने मेहनत खाली इतनी करी थी कि मेरी 500 से 1000 आ जाए। मैं, मेरा एम ही यही था कि मेरी 500 से 1000 आ जाए तो मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो कॉलेज है वो मिल जाता है, और वो बहुत अच्छा है प्लेसमेंट्स के लिए, और वहाँ पे इतना लोड भी नहीं रहता है। तो मेरा एम था कि 500 से 1000 रैंक आ जाएगी तो मैं वहां जाऊंगा, वहां आराम से जिंदगी चिल रहेगी। बट फिर ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया कि मैं पेपर दे के आया और पता नहीं कैसे वहां वहां पे मुझसे मुश्किल क्वेश्चन ज्यादा बन गए बाकियों से। मतलब वहां दिमाग मेरा ज्यादा तेज चलने लग गया, और फिर जब 38 रैंक आ गई तो मैं तो प्रिपेयर्ड भी नहीं था कि यार हमको पता भी नहीं है कि जहाँ जाना है वहां होता क्या है वहां पे, रिसर्च कैसा ही क्या, नहीं किया, कौन कुछ सा रिसर्च कॉलेज ही नहीं। मिलेगा। नहीं मतलब सुना है मैंने, आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे टॉप 2 कॉलेजेस है, मुझे पता है। बट अब अब ये डाउट आ रहा है कि अब वहां का, अब आईआईएससी में मैंने सुना है इतनी मेहनत करवाते हैं कि बच्चे 5 घंटे सोते हैं, हॉलीडे पे भी आते हैं तो बस अपना ही प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और ये सब करते रहते हैं। तो अब वो सुन के डर लग रहा है कि यार इतनी मेहनत भी नहीं करनी है मुझे। और फिर आईआईटी बॉम्बे है वहां पे, तो फिर पता ही है बीटेक के बच्चे जो रहेंगे वो तो मतलब जेई में अंडर 100 वाले बच्चे रहते हैं, तो उधर भी डर लग रहा है कि यार इतना भयंकर कंपटीशन मिलेगा। तो मैं अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर जाता तो अब मेरे को लग रहा है कि काश उतनी आ जाती, मतलब अब अभी थोड़ा मैं चिल रहता कि अब चलो वहां जाना है, अपने टाइप के बच्चे होंगे, प्लेसमेंट तो वही आता है जो हर जगह आता है। पर अब मैं इतनी रैंक लाके अगर वहां जाऊंगा तो लोग मेरे को बोलेंगे कि इतनी रैंक लाई फिर यहीं गया तो क्या मतलब है। सो
कौन सी कॉलेज से एम किया तूने फिर फाइनली? यार अब आईएससी बैंगलोर में तो उनने लास्ट ईयर तक ऐसा था कि दे यूज्ड टू गिव डायरेक्ट एडमिशन, मेरी रैंक अंडर 50, फिर अंडर 50 यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन, बट इस साल उनने रिटर्न टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ठीक है अंडर 50 आ गई, हो सकता है तुम्हारे तुक्के में आ गई हो, अब हमारा टेस्ट दो, टेस्ट निकालोगे तो ही एडमिशन। तो 70% गेट स्कोर लेंगे, 30% रिटर्न टेस्ट लेके वो एक्यूमुलेटेड स्कोर से एडमिशन होगा। तो वही लग रहा है कि अब उसकी तो मैं प्रिपरेशन कर नहीं रहा हूँ अब इतना पढ़ लिया यार 1.5 साल, अब मैं इतना ही पढ़ना। और आईआईटी बॉम्बे विल गिव डायरेक्ट एडमिशन, तो वही लग रहा है मतलब 80% तो है कि वहीं डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो वहीं जाऊंगा। बट अगर आईएससी का रिटर्न निकल जाता है तो पीपल हैव टोल्ड मी कि वहाँ का टैग ज्यादा बेटर है आईआईटी से, और फॉरेन बाहर की कंट्रीज में ज्यादा रिकॉग्निशन है आईएससी का, तो निकल जाता है तो आईएससी, बट नहीं तो फिर आईआईटी बॉम्बे तो है ही। So first will be your IISc and then IIT हाँ, Bombay. देन आईआईटी बॉम्बे। Okay, great. तो अभी मेन प्रिपरेशन पे तो आते हैं, एटलीस्ट कैसे हाँ, कैसे स्ट्रैटेजी क्या थी, वही तो मतलब मेन चीज है। कैसे टिके रहे गेम्स खेलने के बाद भी रातों रात? अरे स्ट्रेटजी ये थी यार, बहुत पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जनरली मतलब लोग 6 मंथ प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग 1 ईयर प्रिपेयर करते हैं, बहुत ही कम लोग मेरे टाइम पे 1.5 ईयर्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि गेट करता है। तो ऐसा हुआ था कि पहले तो मैं बहुत ही कम पढ़ता था, लाइक 2 to 3 आवर्स एक वीक में, दिन में भी नहीं, एक वीक में 2-3 आवर्स थोड़ा बहुत कैजुअली पढ़ लेता था। तो लेकिन ऐसे ही कैजुअली पढ़ते पढ़ते व्हेन आई केम इन माय फाइनल ईयर, जब 6 मंथ बचे थे, तब तक मैं 5-6 सब्जेक्ट कर चुका था, पहले ही वीडियोस देख चुका था। तो जुलाई में, अराउंड जुलाई में मैंने सारे लेक्चर्स खत्म कर दिए थे, जो इतने भी वीडियो लेक्चर्स का पार्ट था, आई फिनिश दैट। उसके बाद फिर अब ये था कि बस रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं और टेस्ट सीरीज देनी है। तो जुलाई से मैंने शुरू किया प्रीवियस ईयर्स। मैंने ऐसे स्ट्रेटेजी ये फॉलो की थी कि पहले मैं एक सब्जेक्ट जो सब सारे वीडियोस तो देख लिए हैं, तो अब ज्यादा टाइम तो लगना नहीं है, बस रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाने। तो मैं क्या करता था, मैंने नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लिए थे, वीडियोस में ऐसे नोट्स बना लिए थे कि अब मेरे को वीडियो रेफर करने की जरूरत नहीं है, like I can just go through my notes and I can revise all the concepts. So ऐसे नोट्स रीड करे 1-2 दिन में, फिर अपना प्रीवियस ईयर्स लगाए, उसी जो भी पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर सारे टॉपिक के लगाए, और मार्क कर लिए कि अब कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, उन पे 1 स्टार 2 स्टार की कितना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है इन क्वेश्चन से, ऐसे करके स्टार वाइज मार्क कर लिए क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐसे 12 सब्जेक्ट का हो गया, सब रिवाइज कर लिए, सबके प्रीवियस ईयर लगा लिए, और जैसे ही प्रीवियस ईयर लग रहे थे उसके बाद मैं उसका टेस्ट दे देता था, टॉपिक टेस्ट सब्जेक्ट का। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा रिवाइज, जैसे ही फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो गया 12 सब्जेक्ट्स का, तो फिर जब सेकंड टाइम मैं रिवाइज करने जाता था, तो मैं इस बार पूरे नोट्स नहीं पढ़ता था। अब ऐसा हो जाता था कि बस एक बार पेज देखता था तो समझ आ जाता, हाँ इसमें ये टॉपिक्स थे और ये है, और जो भी इंपॉर्टेंट होता था उसमें भी मैंने शॉर्ट नोट में भी और शॉर्टर नोट्स, माइक्रो नोट्स बना लिए थे अंडरलाइन वगैरह कर करके, तो वो पढ़ लेता था। तो फटाफट रिवाइज करके और इस बार सारे क्वेश्चन नहीं, इस बार जो स्टार मार्क क्वेश्चंस हैं आई सॉल्व्ड ओनली दैट, और फिर और टेस्ट सीरीज लगाई। तो अब मेरे साथ हुआ क्या, मैं थोड़ा क्या, अब ये इतना परफेक्शन के पीछे भागने के चक्कर में कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए, सब प्रीवियस ईयर 2-3 बार लग जाने चाहिए, तब इतने परफेक्शन के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया। दिसंबर आ गया और मैंने फुल टेस्ट एक भी नहीं दिया था, और दिसंबर में क्या हुआ, थोड़ा मैं डिप्रेशन में भी चला गया। वो था, रीजंस थे। तो दिसंबर के महीने में मतलब 1 दिसंबर के अराउंड आई वेंट इनटू फुल डिप्रेशन कि नहीं हो रहा है यार, अब नहीं होगा, रैंक नहीं आ रही। उसके बाद अब ये भी लग रहा था ना कि अब यहाँ से ऑप्शन भी नहीं है कुछ, प्लेसमेंट क्या, मतलब मेरा इन्फोसिस में हुआ था 5 LPA वाला सर्विस बेस, और मेरे को पता था करियर ग्रोथ अब बहुत स्लो हो जाएगी अगर मैं यहाँ चाहता हूँ तो ऐसे ही फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया, थेरेपिस्ट को दिखाया कि गिव मी मेडिसिन, वो खाया, मेडिसिन भी खाओ तो इतनी नींद आ रही थी। तो फिर तो मतलब और ही पैनिक हो रहा है कि यार मैं टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, और इतने दिन का गैप आ गया है, मेरे को कुछ याद भी है कि नहीं याद है क्या होगा। फिर धीरे धीरे यार अब बहुत हो गया, तो मैंने आई डिसाइडेड कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा यार। तो फिर धीरे धीरे शुरू किया वापस। अब मैंने क्या सोचा यार, अब इतना दिन का गैप आ गया, लाइक इट वाज दिस होल थिंग वेंट फॉर 12 डेज, अब इतना 12 डेज का गैप आ गया, आई वाजंट इवन श्योर कि अब मुझे कुछ याद भी है कि नहीं याद है। तो फिर मैंने बोला कि यार अब एक और रिविजन करना ही पड़ेगा, टेस्ट सीरीज तो ठीक है बट मेन इंपॉर्टेंट तो यही कि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज होना चाहिए। तो मैं उसके बाद फिर एक और थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन लगाया, 1 महीना। तो अब आ गया, अब सोचो 15 जैन, और मेरा गेट पे पता 13 फेब को, 15 जैन आ गया है, एक फुल टेस्ट नहीं दिया है।
और सिर्फ रिवाइज करे जा रहा हूँ। इतना रिवाइज कर लिया कि यार मुझे मतलब लिटरली याद हो गया था अगले पेज पे अब क्या आएगा, क्या नोट्स आने वाले हैं। और हर क्वेश्चन इतनी बार लगा लिया था कि मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ऑप्शन देख के याद हो गया था कि मुझे, अब क्योंकि मैंने कुछ दूसरे मटेरियल लगाए नहीं, जो भी था मेरा प्रीवियस ईयर ही था कि यार इसी से कॉन्सेप्ट्स करने हैं, अब इतना इतना लगा लिया मैंने उनको। अब मेरे को ऑप्शन याद हो गए कि इसका आंसर तो डी है, इसका आंसर तो सी है, क्या ही लगाओ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार फुल टेस्ट दे देता हूँ, तो एक पहला फुल टेस्ट दिया, उसमें मेरी कुछ आई 250 रैंक। मेरी जी की टेस्ट सीरीज होती है, तो मेरे को पता था कि सारे एलिट्स बच्चे ही देते हैं, तो मतलब टॉप 100 अगर तुम रैंक लाया तो उसमें 95 बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज दी होगी मेरी की। उसमें अगर 250 आ रही है तो तुम्हारी अराउंड 300 रैंक की आएगी मेन टेस्ट में। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार 250 आ रही है, अपन तो 500 का एम कर रहे थे, सही है, बढ़िया है। तो फिर उसके बाद एक टेस्ट दिया, कॉन्फिडेंस आया। फिर ऐसे कर करके मैं ज्यादा तो नहीं दे पाया, मैं बहुत लेट हो गया था, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे यही एडवाइस किया था कि टेस्ट सीरीज से ज्यादा प्रायोरिटी तुम सिलेबस को देना, कि सिलेबस पहले रहना चाहिए। टेस्ट तो तुम 5-6 लगा दोगे तो मेनली यूज दैट फॉर टाइम मैनेजमेंट, कि तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, कि 2.5 आवर्स में तुम्हारा एक पूरा हो जाना चाहिए पेपर। उसके बाद 30 मिनट्स तुम्हें बस देखना है कि क्या छूट गया है, या फिर तुम श्योर नहीं हो किसी आंसर पे, तो उसके लिए 30 मिनट्स छोड़ना है। तो ये सब भी मैंने टेस्ट सीरीज में मैंने ज्यादा ये सब फोकस नहीं किया कि मुझे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्या वीक टॉपिक से। अब क्योंकि इतना रिवाइज कर लिया है तो वीक टॉपिक ज्यादा थे नहीं, वरना लोग टेस्ट सीरीज इसलिए यूज करते हैं कि कौन सा टॉपिक बन नहीं रहा है, कहाँ गलतियां हो रही हैं। तो लकीली मैं सिली मिस्टेक ज्यादा वैसे ही नहीं करता था, मतलब 2-3 मार्क्स थोड़ा बहुत इधर उधर होता था। तो उसके बाद 4 फुल टेस्ट दिए, तो मेरी रैंक थी एक में 27, 350, 250, 60, यही रैंक आ रही थी। तो एक में 27 भी आई थी, तो लग रहा था कि हाँ 27 भी आई है एक पेपर में, तो अगर दिन अच्छा रहा तो अच्छी रैंक आएगी मेरी। बस फिर ऐसे ही हुआ। दिन अच्छा रहा उस दिन। तुक्के भी लग गए। बट हाँ, एक और चीज ये हुई थी कि मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था, इतना टेंशन ले रहा था कि मैं, अब सबने ना, मेरे दोस्तों ने एटलीस्ट 14-15 फुल टेस्ट दे गेव, एटलीस्ट 15 फुल टेस्ट। तो एंड व्हेन आई स्क्रॉल थ्रू द रैंकर्स पेज, जो उनकी टेस्ट सीरीज में रैंकर्स होता था, तो मैं देख रहा था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सब ने 15 टेस्ट दिए हैं, सब में कंसिस्टेंटली अंडर 50 आ रहे हैं। तो वो और डिप्रेसिंग लगने लग गया। लेट लास्ट स्टेज में तो मुझे ये लग रहा था कि अब टेस्ट नहीं दिए हैं तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़ जाए कि यार मैं मिस्टेक्स कर दूं वहां जाके। अब रात को मैं जैसे 9:30 पे पेपर था मेरा गेट का, एक दिन पहले मैं 10 बजे सोया। अब मेरे दिमाग में यही थॉट्स आ रहे हैं, टेस्ट नहीं लगाया, टेस्ट नहीं लगाया, यार सिली मिस्टेक कैसा कर पाऊँ मैं, टेस्ट लगा लेने थे, क्या ही करूंगा, इतने रिविजन का टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रात को 10 बजे सोया यही थॉट्स लेके, और मेरे को सपना भी उस दिन नाइटमेयर भी यही आया कि पेपर तो ठीक गया है बट मैं काउंसलिंग भरना भूल गया हूँ। तो अब मेरा स्कोर ही वैलिड नहीं है। फिर नाइटमेयर भी इतना भयंकर नाइटमेयर आया कि मैं 1:30 के अराउंड उठ गया, ऐसे नींद खुल गई। अब मैं देख रहा हूँ, टाइम देखा मैंने, 1:30 हो रहा है, 9:30 पे पेपर है, मैं उठा हुआ हूँ। मैं डर गया यार कि अब सोना भी जरूरी है। मैं नीचे गया, मम्मी से बोला मम्मी नींद खुल गई है, क्या करूँ। मम्मी गेव सम मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता, नींद आ जाएगी, वो भी खाया। बट फिर मेरे को नींद नहीं है, यही थॉट्स मंडराते रहे कि अब क्या होगा क्या होगा। मैं 1:30 से उठा हूँ, मैं 9:30 तक उठा ही रहा। डायरेक्ट पेपर में गया, मेरे को नोजिया भी लग रहा था, नोजिएटिंग वॉमिटिंग टाइप। अब सोया नहीं हूँ, इंडाइजेशन टाइप हो रहा है, कुछ नाश्ता भी नहीं करा। ऐसी स्टेट पे मैं बैठा हूँ पेपर देने, और वहां जैसे ही मैं सेंटर पहुंचा, वंस आई रीच द सेंटर आई सॉ द क्राउड, ह्यूज क्राउड, एंड आई पैनिक्ड कि इतने लोग दे रहे हैं यार, इतने लोग दे जेई रहे हैं। वाली फीलिंग आती है वो। हाँ, जेई जैसी, जेई में तो पता था कुछ नहीं होना, उधर तो पढ़ा ही नहीं था। इधर तो उम्मीद थी कि पढ़ा है, तो और पैनिक हो रहा था। जेई में तो मैं चल गया था कि कुछ नहीं आता, ठीक है, बस देना है। अब एडवांस में 6 घंटे कैसे भी एंड्योर करना है, बट यहाँ था कि यार यहाँ तो पूरा अपना मेंटल फोकस रहना चाहिए। उसके बाद फिर पापा ने भी यही बोला, तुझे क्राउड से क्या करना, मैं बता रहा हूँ इनमें से 90% ने तो प्रिपरेशन भी नहीं करी होगी, ऐसी मुंह उठा के देने आ गए, तो ज्यादा टेंशन मत ले। फिर अंदर गया, पेपर देने बैठा, और पहला ही क्वेश्चन में से नहीं बता। और डिप्रेस कि क्या हो रहा है क्या। वही पहला क्वेश्चन एप्टीट्यूड का, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, एप्टीट्यूड मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बट फिर सेकंड से 10th तक एप्टीट्यूड के सारे ही बन गए। फिर मैं फर्स्ट वाले पे भी बन गया, फिर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार बन रहा है बन रहा है।
बट बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चल रहा था कि पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया, क्योंकि मेरे मतलब जनरली मैं बहुत तेजी से पेपर सॉल्व करता था टेस्ट सीरीज में, बट यहाँ में यार अब होता क्या है ना, पेपर में हो तो आप इतने टेंस रहते हो कि आप 3+4 7 हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको डाउट होता है कि ये भी आप कैलकुलेटर में डाल के डबल चेक कर रहे हो कि भाई इतना ही हो, क्योंकि अब छोटी सी अब गेट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में क्या रहता है, जैसे अपने एडवांस में तो इंटीजर रहता है कि 0 से 10 के बीच में 9 के बीच में बबल फिल करना रहता था, यहाँ पे आपको टाइप करना है अपना न्यूमेरिकल आंसर, और आंसर कैसे आएंगे -7.753, तो थोड़ी थोड़ी भी मिस्टेक में ऐसे तो रेंज के बाहर हो जाओगे, आप बोलोगे एक रेंज देते हैं कि इसी रेंज में आपका आंसर टाइप करना था, तो उधर भी डबल चेक क्रॉस चेक इतना कर करके ऐसे छोटे से छोटे क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन जिनमें आपको 1 मिनट लगाने चाहिए, मैं 3 4 5 मिनट लगा रहा हूँ एकदम डबल चेक करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए, बट हो गया, पेपर दिया, बाहर आया, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था बहुत टफ पेपर गया है यार, बहुत टफ पेपर था, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद दोस्त मिल गया वो बोलता भाई क्या मजे आ गए, बहुत इजी पेपर था, सबके 65+ आ जाएंगे इसमें तो बोलता है कि मैंने तो प्रिपेयर नहीं करा वरना बहुत इजी पेपर आया था। अब मैं और डिप्रेस, ये इजी पेपर था बच्चों को इजी लग रहा है, मैं घर आया व्हाट्सएप ग्रुप सब बोल रहे अरे बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। उसके बाद फिर पैनल डिस्कशन देखा मैंने, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो पेपर एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बोला कि यार पेपर इजी तो नहीं कहेंगे आप इसको, ट्रिकी बहुत बोलोगे, बहुत ट्रिकी पेपर था, क्योंकि इसमें हमारे टाइम में पहली बार मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे एडवांस में होते हैं कि मोर देन वन ऑप्शन माइट बी करेक्ट, एंड उसमें एडवांस में पार्शियल मार्किंग होती थी कि आपने दो है 1 मार्क कर रहे चलो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, इसमें है कि नहीं अगर दो है आपने 1 मार्क किया तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो तो अब इतना ट्रिकी पेपर था, अब लोगों को समझ नहीं आया लोगों ने बोला कि आसान पेपर है, क्वेश्चंस इजी थे बट ट्रिकी थे, तो फिर बहुत नेगेटिव हुए लोगों के इस चक्कर में, मतलब एमएसक्यू में तो नेगेटिव नहीं थे, उसमें 0 हो जाता था, तो लोगों को लग रहा था कि इसमें हमें, उन्हें तुक्के भी मार दिए, तो सब बोले थे हमने 60 अटेम्प्ट कर दिए, 61 अटेम्प्ट कर दिए, मैं भी 65 में से 61 अटेम्प्ट करके आया था, क्योंकि एमएसक्यूज में नेगेटिव नहीं थी और न्यूमेरिकल्स में भी नेगेटिव नहीं होती थी, सिर्फ एमसीक्यू में नेगेटिव थी, तो सबने अटेम्प्ट तो 60-61+ ही किया था, बट एक्यूरेसी बहुत कम थी हमारे पेपर में, लाइक last year in the score that I got 73.33 I scored, and after normalization it was 71.4, तो लास्ट ईयर 71.4 मार्क्स में आप रैंक चेक करोगे तो वो अराउंड 200 है, और उसके भी प्रीवियस ईयर तो वो अराउंड 400 है, बट इस साल मेरे इस स्कोर पे 38 रैंक आई है, तो पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत ज्यादा लेवल बहुत टफ था, बट लोगों ने मुझे कन्विंस कर दिया कि पेपर बहुत इजी है, 10 दिन डिप्रेशन में बैठा रहा कि इजी पेपर है, मैं बहुत कम स्कोर करके आया हूँ, इनिशियल आंसर की जो कोचिंग निकाली उसमें भी उन्हें नंबर बहुत कम आ रहे थे, उनने कुछ और ही ऑप्शन मार्क कर रखे थे, बट जैसी फाइनल आंसर की आई जो ऑफिशियल्स देते हैं, गेट ऑफिशियल्स देते हैं जिनने पेपर सेट किया है, तो उसमें मेरे बहुत सारे करेक्ट हो गए, जो कोचिंग वाले बोल रहे थे नहीं ये तो गलत है यही होगा, सब बच्चे भी आर्ग्यू कर रहे थे नहीं यही होगा यही होगा, और मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो 99% बोल रहे थे कि इसका आंसर तो यही है, और मैं डी मार्क करके आया हुआ हूँ, बट उसका डी आ गया, तो सब फिर चैलेंज करने पहुंच गए, लड़ने पहुंच गए, कैसे डी कैसे डी कैसे, तो फिर इसलिए उनने फिर फाइनल आंसर की मैं तो दोनों ही कर दिया, बट अच्छा था, मतलब यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर दूसरे क्राउड की नहीं सुननी चाहिए। एक्चुअली पहले से ही वो ऐसे डीमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए एग्जाम से हाँ निकल के हम लोग पूछते रहते हैं ना लोग को कैसा गया एंड देन बाद में फिर वही दिमाग में चलता रहता है यार मेरा तो ये था लाइक 2-3 days बिफोर द पेपर आई वाज लाइक, मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था बस यार गेट हो जाओ तो मैं भले ही फेल हो जाऊं, आई कुडंट केयर लेस, अब हो गया, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी दिन भर बस पढ़ रहे हैं, 2-3 दिन जब बचे अब दिन भर बस पढ़ रहे हो, शाम को बस वॉक पे निकल रहे हो फिर पढ़ रहे हो, आई लाइक कि बस यार हो जाए, कैसा भी जाए, फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस हो जाए, फिर मैं आराम से सोऊंगा, गेम खेलूंगा, काउंटर स्ट्राइक खेलूंगा देवेश भाई के साथ बट फिर जब पेपर दे के आया, और नहीं ऐसा नहीं होता, अगर आपको कोई कन्विंस कर दे कि आपका पेपर खराब किया तो आप नहीं चिल नहीं रह सकते फिर आप। वो भी इतना नहीं 1.5 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम योर जर्नी तो जब हाँ हाँ स्टार्ट किया है एंड बीच में भी देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स राइट मुश्किल है कि हाँ, इतना अरे स्टेबल रहना। 1.5 years में इतना कुछ हो गया यार, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हुआ इतने लोज देखे, इतने हाईज देखे, लाइक दिसंबर वाज माय लोएस्ट ऑफ माय एंटायर लाइफ, मतलब वो पॉइंट मेरा जेई से भी लो था, जेई के बाद जो मैं फील किया था उससे भी लो फील कर रहा था दिसंबर के टाइम में, बट फिर फेब आया, वही यार टाइम की बात है लो आते हैं तो हाईज भी आते हैं कुछ टाइम बाद, तो वही है, डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपना टाइम आता है
Main thing is to like get back up and मोटिवेटेड, continue. नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए बस दे दो, फिर जैसा भी जाए वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रिपरेशन तुम्हारे हाथ में है। और वही मैंने भी यही फील किया कि यू कैन ओनली प्रिपेयर फॉर अ 3 डिजिट रैंक एंड देन द 2 डिजिट रैंक इज ऑन द डे, कि तुम्हारा दिन कैसा है उस दिन। तो वही है, प्रिपरेशन जो भी है, इंटरव्यू है, गेट है, तो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में खाली प्रिपरेशन है। तो वही एनालिसिस रिसर्च करो, प्रिपेयर करो, बाकी रिजल्ट तो फिर जैसा भी आए अपनी तरफ से 100% दो। अब मैं बोलता हूँ तो मेरे को पॉइंट्स आते जाते हैं। पैचअप, ब्रेकअप, सीएस। अरे वो जो दिसंबर में डिप्रेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था एक्चुअली, जो मैं बोल रहा हूँ ना, दिसंबर में डिप्रेशन हुआ है वो इसीलिए हुआ था। हाँ, तू बोला तो था तब थेरेपी हाँ, थेरेपी गया, ब्रेकअप हो गया उसके था, बाद फिर दिमाग खराब चल रहा 11 है। दिन बाद नाइट स्टे पे गए अपन, दोस्तों के साथ नाइट स्टे पे रुके, अपने बट वीडियो हो गया देख ना के फिर। उसको लगेगा कि मैंने गलती की। नहीं, पैचअप हो गया ना भाई, गेट के पहले ही हो अच्छा गया अच्छा, था। तो ठीक। तभी तो इतना पढ़ लिया भाई, नहीं तो नहीं हो रही थी पढ़ाई, नहीं आ रही थी रैंक। क्या मोटिवेशन है। हाँ, हुआ यार, लेकिन 10-12 दिन वेस्ट हुआ, वही लगता अगर, बट ठीक है यार, अब इससे अच्छी क्या ही जाती। अब 38 आ गए, अब क्या करना, 110 आए, 38 आए, कॉलेज तो वही मिलते हैं। तू ठीक है, क्या वो पूछ गए रही थी संचिता? हाँ, मैं पूछ रही थी। Yeah. So, कोई topics that you, whether any topics that you left out, or did you prepare for the whole syllabus, or are there any topics that are people should focus on these major main topics? So, कुछ भी tips हो तो please. There's only one advice that I would like to give to GATE aspirants is that GATE is about breadth, not depth. You should cover all the topics rather than going into the depths of one topic. तो breadth first search लगाओ, इसमें depth first search लगाने की जरूरत नहीं है. First cover the entire depth, entire syllabus on a basic level, because the question setters ask you very basic questions from all the topic. They try to span the entire syllabus rather than going into depth of one topic. But yeah, some topics there might be some questions, 1 or 2 questions, and nobody would be able to solve them. You don't need to worry about that unless you are planning for EIR1. Then I would suggest yes, go to entire depth of every topic. But yes, for under 100, it's enough that you cover the basics of the entire concepts. कुछ यूजफुल साइट्स या कुछ प्रैक्टिस मटेरियल्स? हाँ, कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए मुझे पता है, बाकी दूसरे ब्रांचेस का नहीं पता, बट यही है, रवि सर के लेक्चर्स तो यार मस्ट है, मस्ट, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता गेट का सिलेबस इतना इजीली, शॉर्ट वे में, कंसाइज्ड वे में, जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीजें पढ़ाई है उन्हें जो आता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है, अप्लाइड गेट की टेस्ट सीरीज, मेड इजी की टेस्ट सीरीज, अगर आपके पास टाइम है 2 टेस्ट सीरीज देने का, अगर एक देना है तो मैं तब भी यार, मतलब मेड इजी के मॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा जो एंड में होते हैं, 10 मॉक पेपर जो होते हैं पेपर के जस्ट पहले, जो मैं नहीं दे पाया, वो मैं मेड इजी के ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा, क्योंकि वो सब देते हैं, वो सारे ही आपके कॉम्पिटिटर्स देंगे, तो आपको पता चलेगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बाकी बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से टेस्ट सीरीज देनी है, देन आई वुड से कि अप्लाइड गेट, वहां पे मतलब एक तो क्वेश्चन, लिटरली एक क्वेश्चन एल्गोरिथम्स का सेम आया जो मैंने अप्लाइड गेट में पूछा था टेस्ट सीरीज में, एंटायर सेम क्वेश्चन आ गया, तो ज्यादा मेहनत नहीं लगी उसको करने में, तो अप्लाइड गेट की मैं टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूंगा। उसके अलावा वही गेट ओवरफ्लो का पैनल डिस्कशन बहुत हेल्पफुल है गेट ओवरफ्लो में, और प्रीवियस ईयर्स तो मस्ट है लगाना, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन 2 times, स्पेशली द रीसेंट क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड, तो उसी पैटर्न पे थोड़ा चेंज करके इस क्वेश्चन आते हैं। गेट ओवरफ्लो की पीडीएफ, अप्लाइड गेट मेड इजी टेस्ट सीरीज, रविंद्र सर्स लेक्चर्स, जो कि अब अनअकैडमी पे हैं वो, तो वहां पे तो अब बहुत सारे टीचर्स एक साथ मिल जाएंगे, आप अगर आप उनका सब्सक्रिप्शन लोगे तो साथ में 5-6 टीचर्स और है, तो अगर उनसे भी सूट नहीं करे बाकी टीचर्स का भी देख सकते हो, तो यही है। बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी लोग बोलते हैं, मैंने तो नहीं लगाई, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर लगानी हो तो वही रवि सर का एक वीडियो, उनमें सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स उन्होंने बताई है, अगर आपके पास टाइम हो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करने का
जैसे 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और डेप्थ में जाना है टॉपिक के, कोई लग रहा है कोई टॉपिक वीक है और डेप्थ में कवर करना है, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूंगा. तो गाइस जितने भी लिंक बताए सीडीएस ने, ओह शिट. Yeah, do follow me on Instagram, Sidious. अच्छा रुक, वो एंड में बोल. अरे वो मेरे को गेमिंग नेम भी याद है क्या. हाँ, CS:GO पे भी Sidious. वही. तो गाइस सिद्धांत ने जितने भी लिंक्स बताए सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. एंड आई गेस दैट्स इट. ऑल्सो सिद्धांत की इंस्टा आईडी एंड नहीं, लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू कनेक्ट हिम. ठीक है, नहीं फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, क्वेरीज डाल देना डीएम में, मैं आंसर कर दूंगा. Chalo, it was really nice interacting with you. And Yeah, same. congratulations once again. Thank you for coming and sharing your experience. Yeah, thank you for inviting. Whatever tips you gave, I hope that it helps the viewers achieve the same feat as you. And that's all for today, guys. Thanks. Don't forget to like, share the video if you like our content and if you're still watching. And thanks and bye-bye. Bye bye guys. Bye.